Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the parents and students. How are you all? Today we are going to start our unit 5 of class 3 New Oxford Modern English, and the title of this lesson is Message in a Bottle. And as you all know that whenever we teach something to students, that thing must have some SLOs, means we should be aware of the SLOs, means the student learning outcomes. इट मीन्स दैट हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये पढ़ाने का मकसद क्या है, और बाद में हमने उनको किन किन चीज़ों में असेस करना है. व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन विच वी हैव टू असेस दैम. ठीक है. सो आई हैव रिटन सम SLOs हियर. जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारे रेगुलर जो हमारे SLOs हैं वो ये होते हैं. रीडिंग मीन्स आवर फर्स्ट आउटकम इज़ टू make the children able for good reading. Then translation. Comprehension means what they have read, they are able to comprehend it, they are able to answer the questions related to that text. Grammar, creative writing, and in the end we do the assessment regarding all these SLOs के बच्चों ने ये कितनी चीज़ें इसमें से जो है वो ग्रैब की हैं. टीचर्स, दिस इज़ द पॉइंट फॉर यू. ये आप लोगों के लिए ये पॉइंट है, और ये अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में इस पॉइंट को आप अगर मिस कर जाएंगे तो यू आर नॉट अ गुड टीचर. ओके. तो अपने टीचिंग उसमें स्ट्रेटजी में, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में यू हैव टू पुट द SLOs ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटीज़. आपको भी पता होना चाहिए दैट व्हाट यू आर टीचिंग, एंड स्टूडेंट्स मस्ट ऑल्सो बी अवेयर दैट व्हाट दे आर लर्निंग, and then it is your responsibility as a teacher to assess the students according to these SLOs. ओके. अगर उनको रीडिंग करवा दी है, ट्रांसलेशन करवा दी है, सब कुछ करवा दिया, और उसके बावजूद यानी कि रीडिंग और ट्रांसलेशन और उसको समझने के बावजूद अगर स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट, and if your students are not able to answer the questions related to that thing which they have read, तो आपका फिर इसका मतलब है कि ये पहले 2 SLOs ही आपके कंप्लीट नहीं हुए, यही आपके जो है वो मीट नहीं हुए, और आपको अभी रीडिंग और ट्रांसलेशन पे जो है और एक्सप्लेनेशन पे बच्चों की काम करना है. तो सो दैट के बच्चे, द स्टूडेंट्स आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट थिंग विच दे आर रीडिंग. So keeping all these SLOs in mind, we are going to start the reading and translation of this unit. And as you can see here in this picture that there are 2 kids, one is a girl and one is a boy, and the girl is holding a bottle in her hand and the boy is holding a paper, and you can see a beach there with sand and sand castle and these trees. So it is a story about 2 kids who live near a beach. And let's start the reading. And first of all we will do the words to know. And the first word is decided. What is the meaning of decided? Made up one's mind about something. Means when you make up your mind to do something, when you are determined to do something, that is called decided. And in Urdu its meaning is फैसला किया. It is written here, as you can see here, फैसला किया. Number 2 is difficulty. Difficulty means something not done easily, something which is not easy. Okay. और उर्दू में इसका है मुश्किल. Discovered, found, uncovered, learned about means to find something, to search something, to uncover something that was previously there but you were unaware of that, and now you have searched or found that thing and you are now aware of that thing. यानी एक ऐसी चीज़ जो कि पहले से मौजूद थी बट आपको उसका नहीं था पता, और अब आपने उसको दरियाफ्त किया है, तो इसको हम कहते हैं दरियाफ्त किया. ओके. Discovered means it has E and D in the end, means it is in the past tense. Okay. Discovered, दरियाफ्त किया. Next is foolish. Foolish means not clever, not bright. A person who is not that much clever and who does not understand the things easily. तो उसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? बेवकूफ़. ठीक है, या ना समझ. Message. Message means a short letter or words sent from one person to another. यानी कि आजकल तो हम मैसेजेस जो है वो अपने मोबाइल्स पर जो है वो सेंड करते हैं. ठीक है, व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं. तो मैसेज इज़ मैसेज मीन्स सम वर्ड्स विच यू आर गोइंग टू सेंड समवन. ओके. इसका मतलब है पैगाम. Scampered. What is the meaning of scampered?
ran quickly and lightly. It is also in past tense and इसका मतलब है कि जल्दी से भागना, ठीक है. तो इसको उर्दू में इसका मीनिंग है तेज़ी से भागना, and in easy English it is ran quickly and lightly. wondered का मतलब है हैरान होना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हैरान होना. thought about with curiosity and doubt, हैरान हुआ. It is also in past tense. So students and parents and teachers, I am going to give you an idea of the reading and translation of this chapter so that you can teach your children at homes easily. And these videos are directly meant for the parents and for the tuition teachers who teach the students at homes, and these are also meant for the school teachers who want to know the methodologies and who want to know the strategies of teaching the different subjects. अगर इन चीज़ों को आप ध्यान से, यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑल ऑफ यू दैट आपने बच्चों को जो है वो कैसे पढ़ाना है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अ लॉन्ग टाइम अगो two children, Afia and Hassan, Afia and Hassan lived in a small fishing village by the sea in the south of Pakistan. A long time ago, बहुत अरसा पहले. A long time ago means बहुत अरसा पहले. Two children, दो बच्चे, Afia and Hassan, Afia और हसान, lived in a small fishing village. एक रहते थे एक छोटे से मछलियाँ पकड़ने वाले गांव में, यानी कि एक ऐसा गांव जहाँ पर मछेरे रहते थे. मछेरे मीन्स जहाँ पर मछलियाँ पकड़ने वाले लोग रहते हैं, ठीक है. बाय द सी, समंदर के पास. इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जनूब में. साउथ का क्या मतलब होता है? जनूब. यानी कि जैसे एक चीज़ है और जैसे ये पाकिस्तान है पूरा और उसका जो साउथ है, ठीक है. वी हैव रेड दिस इन आवर सोशल स्टडीज सब्जेक्ट कि साउथ क्या होता है, नॉर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ वेस्ट एंड व्हाट इज़ ईस्ट. द लोअर पार्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इट साउथ पार्ट, ठीक है. नॉर्थ इज ऑन द अपवर्ड साइड एंड साउथ इज ऑन द डाउनवर्ड साइड. तो साउथ ऑफ पाकिस्तान, यानी आपको पता है कि पाकिस्तान के मैप में जो ये साउथ वाला यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है, जब हम कराची और ये इधर बलूचिस्तान वाली साइड पर आते हैं तो इधर हमारे पास जो है वो सी है, ठीक है. तो एज़ यू नो कि ये आपको एक बीच नज़र आ रहा है और ये एक मछेरों का जौन सा ये गांव था, ठीक है. एंड द फिशरमैन लिव्ड हियर. इट वाज अ स्मॉल फिशिंग विलेज बाय द सी इन द साउथ. तो सी हमारे पास कहाँ पर है पाकिस्तान में? वी हैव सी इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, इन कराची एंड इन बलूचिस्तान. ओके. सो they were good friends and lived next door to each other. They were good friends means वो अच्छे दोस्त थे, and lived और रहते थे next door to each other, एक दूसरे के घर के आसपास, ठीक है, एक दूसरे के साथ, यानी कि वो हमसाए थे. Their fathers were both fishermen. उन दोनों के बाप, उन दोनों के वालिद क्या थे? मछेरे थे. Fishermen मछेरे, मछलियाँ पकड़ना उनका काम था. There was no school in the village. गांव में कोई स्कूल नहीं था. सो द चिल्ड्रन बिल्ट सैंड कासल्स. लिहाजा बच्चे रेत के किले बनाते थे. रेत के क्या बनाते थे? वो महल बनाते थे या किले. एज यू कैन सी हियर दैट दिस इज अ सैंड कासल. ओके. चेज्ड क्रैब्स, केकड़ों का पीछा करते थे. चेज्ड मीन्स पीछा करना, ओके, पीछा करते थे. क्रैब्स केकड़े, ये जो आपने देखा होगा कभी रियल में या आपने किसी वीडियो में या कहीं कि वो केकड़े जो होते हैं जिनके आगे इस तरह वो पाँव होते हैं ऐसे, वो टोंग्स की तरह के, ठीक है, तो उनको हम केकड़े कहते हैं. स्वैम इन द सी, समंदर में तैरते थे. एंड क्लाइम्ड कोकोनट पाम्स ऑल डे लॉन्ग, और सारा दिन नारियल के दरख्तों पर चढ़ते थे. कोकोनट नारियल के, पाम्स दरख्त, नारियल के दरख्तों पर चढ़ते थे. यानी कि उस विलेज में देयर वाज नो स्कूल, सो द चिल्ड्रन वर free all the day and they used to build sand castles on the beach and they used to chase the crabs and they used to swim in the sea and climb coconut trees. Means they were all free. जैसे कि सेम लाइक जैसे आजकल आप लोग फ्री हैं और आप लोगों के पास जो है वो काम नहीं है कोई भी करने को. यू पीपल डोंट गो टू स्कूल, योर स्कूल्स आर ऑफ. आप लोगों को स्कूल से छुट्टियां हैं तो आप सारा दिन अपने पेरेंट्स को जो है वो तंग करते हैं. एंड यू नो that you want some kind of activity all the time.
तो ये मतलब फारिग रहने के ये जो है नुकसानात हैं, यानी कि स्कूल ना जाने के ये नुकसानात हैं कि आप लोगों के पास इतना फारिग टाइम होता है कि उसमें आप लोगों को करने को कुछ भी नहीं होता, एंड यू जस्ट वेस्ट योर टाइम. सेम लाइक दैट दीज चिल्ड्रन वर वेस्टिंग देयर टाइम बिकॉज दे हैड नो स्कूल इन देयर विलेज. दे हैड अ वंडरफुल लाइफ. उनकी ज़िंदगी बहुत मज़े की थी. विदाउट एनी वरीज, किसी भी फिक्रमंदी के बगैर, यानी कि उनको कोई फिक्र नहीं थी. जैसे कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, द चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल they worry about their studies and they get tensed about their studies, their papers, and they have worries. उनको अपनी पढ़ाई की फ़िक्र होती है. लेकिन इन बच्चों की इन बच्चों की कोई फ़िक्र नहीं थी, और इन बच्चों को किसी किस्म की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि उनकी ना पढ़ाई थी ना स्कूल था. वन डे, एक दिन, दे वर प्लेइंग ऑन द बीच. वो साहिल समंदर पर. बीच का क्या मतलब होता है? साहिल समंदर, ठीक है. दे वर प्लेइंग ऑन द बीच. वो साहिल समंदर पर खेल रहे थे. व्हेन दे फाउंड अ लार्ज ग्रीन बॉटल. जब उन्हें एक बड़ी सी हरे रंग की, सब्ज रंग की बोतल नजर आई. एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर दैट दिस गर्ल इज होल्डिंग अ ग्रीन बॉटल. यानी एक दिन वो खेल रहे थे बीच पर, ठीक है, रेगुलरली जैसे वो खेलते थे, एंड दे फाउंड अ लार्ज ग्रीन बॉटल. नेक्स्ट पेज इज with great difficulty the children took the cap of the bottle. with great difficulty, बहुत मुश्किल से, the children, बच्चों ने, took the cap of the bottle, बोतल पर से ढक्कन उतारा, यानी कि उसका कैप उतारा. inside it found a piece of paper. इसके अंदर उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा नज़र आया, ठीक है. what does it say? इस पे क्या लिखा है? cried आफिया. आफिया चिल्लाई excitedly, जोशीले अंदाज से. एक्साइटेडली का क्या मतलब है? जोशीले अंदाज से. ओके. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. रिप्लाइड हसान. हसान ने जवाब दिया. देर इज सम राइटिंग ऑन इट. इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बट वी कांट रीड, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते. द चिल्ड्रन वंडर्ड व्हाट टू डू. बच्चों ने सोचा, यानी हैरानी से सोचा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए. ओल्ड बाबू, बूढ़ा बाबू, द शॉपकीपर इन द विलेज, जो कि इसमें गांव में एक दुकानदार था, कुड रीड, पढ़ सकता था. यानी कि गांव में एक दुकानदार था जिसका नाम था ओल्ड बाबू, और वो सिर्फ पढ़ सकता था, ठीक है, वो पढ़ने के काबिल था. ही वुड बी एबल टू टेल देम व्हाट इट सेड. वो इस काबिल था कि वो इन्हें बता सके कि इस पे क्या लिखा है, यानी उस कागज़ पे क्या लिखा है, क्योंकि वो ओल्ड बाबू जो है वो पढ़ सकता था. सो वो इनको बता सकता था, बच्चों को, कि वो अपना इस पे क्या लिखा हुआ है. दे डिसाइडेड टू गो टू हिम. उन्होंने फैसला किया कि वो उसके पास जाएं. दे स्कैम्पर्ड अलोंग टू द शॉप. हमने स्कैम्पर्ड को जो है वर्ड्स टू नो में पढ़ा था, और इसका मीनिंग था कि तेज़ी से भाग कर गए. दे स्कैम्पर्ड अलोंग टू द शॉप. वो तेज़ी से भाग कर दुकान पर गए. विद द बॉटल एंड द पेपर. उस बोतल और कागज़ के साथ. लुक बाबू, क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली. देखो बाबू, बच्चे जोशीले अंदाज में चिल्लाए. लुक व्हाट वी डिस्कवर्ड ऑन द बीच. देखो हमें समंदर पर क्या मिला, साहिल समंदर पर हमने क्या दरियाफ्त किया. ओल्ड बाबू टुक द पेपर फ्रॉम द चिल्ड्रन. बूढ़े बाबू ने बच्चों से वो कागज़ लिया. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दिस इज ओल्ड बाबू, एंड ही हैज़ टेकन दैट पेपर फ्रॉम दीज चिल्ड्रन, एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू रीड इट, एंड द चिल्ड्रन आर लुकिंग वेरी एक्साइटेड. ओल्ड बाबू टुक द पेपर फ्रॉम द चिल्ड्रन. बूढ़े बाबू ने बच्चों से कागज़ लिया. ही पुट ऑन हिज ग्लासेस. उसने अपना चश्मा लगाया, यानी अपना नज़र की ऐनक लगाई. एंड स्टार्टेड टू रीड. और पढ़ना शुरू किया. इफ़ यू गेट दिस, अगर तुम्हें ये मिले, सेड ओल्ड बाबू, बूढ़े बाबू ने कहा. रीडिंग फ्रॉम द पेपर, कागज़ पर से पढ़ते हुए. प्लीज़ राइट टू मी, तो मुझे जवाब लिखना. आई एम डेविड, मैं डेविड हूँ. एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड, और मैं न्यूजीलैंड के एक छोटे से मछेरों के गांव में रहता हूँ. हेयर इज़ माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है, यानी कि ये मेरा पता है. यानी कि उस कागज़ पर क्या लिखा हुआ था? उस कागज़ पर ये लिखा हुआ था दैट आई एम डेविड एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज नियर इन न्यूजीलैंड, एंड इफ़ यू फाइंड दिस बॉटल देन राइट बैक टू मी. ठीक है, उसने यानी कि ये मैसेज जो है वो बोतल में लिख के डाला हुआ था. ओल्ड बाबू पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर.
बूढ़े बाबू ने कागज़ पर लिखे हुए पते के ऊपर इशारा किया. पॉइंटेड मीन्स इशारा किया. हेयर इज़ द बॉयज़ एड्रेस. ये यहाँ पर लड़के का पता है. ही सेड, उसने कहा. दिस बॉटल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड. ये बोतल न्यूजीलैंड से यहाँ तक आई है. इट इज़ अ कंट्री फार फार अवे ओवर द डीप ब्लू सी. ये एक ऐसा मुल्क है जो कि यहाँ से बहुत बहुत दूर है और गहरे नीले समंदर में वाक़या है. यू मस्ट राइट टू डेविड. तुम्हें लाजमी डेविड को जवाब देना चाहिए. ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड जस्ट लाइक यू. वो लाजमन तुम्हारे जैसा एक छोटा सा बच्चा होगा. टेल हिम दैट यू फाउंड हिज मैसेज. उसे बताओ कि तुम्हें उसका पैगाम मिल चुका है. यानी बाबू ने उन्हें कहा, उन बच्चों को, कि दैट यू मस्ट राइट बैक टू डेविड एंड ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड लाइक यू. वो आपकी तरह का एक छोटा बच्चा होगा तो वो बड़ा खुश होगा. ठीक है. और न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जो यहाँ से बहुत 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 दूर है और वहाँ से ये जो बॉटल है, ये मैसेज है जो आया है. ठीक है. तो अगर आप उसे वापस लिखेंगे तो वो जो सा वो खुश होगा. द चिल्ड्रन लुक डाउन एट देयर फीट. बच्चे अपने पैरों की तरफ देखने लगे. दे लुक्ड सैड. वो उदास लग रहे थे. वाई आर यू लुकिंग सो सैड आस्क्ड ओल्ड बाबू. तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? बूढ़े बाबू ने पूछा. वी कैन नॉट रीड और राइट कैन वी. हमें लिखना और हम लिख और पढ़ नहीं सकते हैं ना. रिप्लाइड आफिया. आफिया ने जवाब दिया क्वाइटली, आराम से. वी आर फुलिश. हम बेवकूफ़ हैं. यू आर नॉट फुलिश एट ऑल. तुम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हो. सेड ओल्ड बाबू. बूढ़े बाबू ने कहा. वाई डोंट यू लर्न. तुम पढ़ते क्यों नहीं? देर इज़ नो स्कूल हेयर. यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है. सेड हसान. हसान ने कहा. हाउ कैन वी लर्न. हम कैसे पढ़ सकते हैं? आई विल टीच यू. मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. सेड ओल्ड बाबू. बूढ़े बाबू ने कहा विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को, व्हेन द शॉप वॉज क्वाइट, जब दुकान पर कोई नहीं होता था. शॉप वॉज क्वाइट मीन्स जब दुकान पर कोई नहीं होता था. द चिल्ड्रन सैट विद ओल्ड बाबू. बच्चे बूढ़े बाबू के साथ बैठते थे. ही गेव देम पेपर एंड पेंसिल्स. वो उन्हें कागज़ और पेंसिल देता था. एंड ही टॉट देम. और उसने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया. Some months later, कुछ महीनों बाद, आफिया एंड हसान wrote a letter to David in New Zealand. आफिया और हसान ने न्यूजीलैंड में डेविड को एक खत लिखा. He wrote back to them. उसने उन्हें वापस जवाब दिया. The months went by. कई महीने गुजर गए. The years went by. कई साल गुजर गए. आफिया एंड हसान still write to David. आफिया और हसान आज भी डेविड को खत लिखते हैं. Now they are nearly as old as old बाबू. अब वो बूढ़े बाबू जितने बूढ़े हो चुके हैं. As old बाबू was when he first read them the message in the bottle. अब वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि जब बूढ़ा बाबू उतना बूढ़ा था जब उसने उन्हें उस बोतल में पड़े हुए मैसेज को या पैगाम को पढ़ के सुनाया था. The author of this story is Nicholas Horsburgh, which is also the author of your book New Oxford Modern English. So parents and teachers, in this way you can do the reading and translation with your children. आप घरों में उनको अपनी ये रीडिंग और ट्रांसलेशन आराम से करवा सकते हैं. और फिर आपने जिस तरह रीडिंग और ट्रांसलेशन करवाई है उनको, उसी तरह आपने फिर उनसे भी सुननी है. ठीक है. आपने बच्चों को एक दफ़ा रीडिंग करवा के, सारे वर्ड्स मीनिंग्स बता के, सारी ट्रांसलेशन बता के, फिर आपने देन यू हैव टू listen the reading and translation from the students also. And while reading in this box, have you ever found an interesting object on the beach? Did you collect it or leave it there? We live in Lahore, and if any one of you have ever visited to the beach, or if you have ever visited to Karachi, you must be to the beach. You must have been to the beach. अगर आप में से किसी ने कभी बीच पर कोई आपको इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट कभी मिला हो तो उसके बारे में उन्होंने पूछा है. तो दिस वॉज द स्टोरी. और इसका मैं एक रीकैप आप लोगों को दोबारा से दे देती हूँ. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ मैसेज इन अ बॉटल, एंड इन दिस स्टोरी देयर आर टू kids, Afia and Hassan, and they live next to each other. They are neighbors, and they live in a small fishing village near the sea in the south of Pakistan. And there was no school in their village, so they were not able to read and write. One day, as they were playing near the beach, they got a bottle. They found a bottle with a message in it, but they were not. There was something written on that paper, but they were not able to read that writing because they were
illiterate and they were not able to read and write. There was only one person in their village who was able to read and write and who was literate, and that was old Babu, as you can see here in this picture. Old Babu was a shopkeeper, but he was able to read and write, so they took that paper to that old Babu, and when old Babu read that paper, it was a message on that paper written that I am David and I am from New Zealand, and if you found this bottle or message, then write back to me. So old Babu told them that this message is from a small boy like you that lives in New Zealand in a small fishing village in New Zealand, and you must write back to him. But the children were sad. They said that they are not able to write back to him because they cannot read and write. So old Babu asked them to come to their shop every day, and that he will teach them. So they started learning from old Babu, and then they were able to read and write, and then they write a message back to David, and they became friends with David, and they are now old, but they still write to David, and David write back to them. तो स्टूडेंट्स ये थी पूरी हमारी स्टोरी, ठीक है. तो इसमें आपको पता चला कि पढ़ने लिखने की क्या अहमियत होती है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज, इट्स comprehension, question answers and all the exercise. Stay tuned with me, and thank you so much for your time, and if you have any questions you can ask me in the comments, and till then take care. Allah Hafiz.